So hey my friends, welcome. So if you are a serious UPSC aspirant, so this is the video for you because we are just drilling down, we are just analyzing everything in the video. And this is the answer booklet of Aditya Shrivastava, who has secured the first rank last year, means in 2023. And look, you will have some new learnings from this video. After watching this complete video, what you will get, you will just get to know everything, like the terms, the keywords, the concept, or English. Means what happens, we know the knowledge. Like if I ask you the same question right now, whatever you can just see on the screen, so you will have the concept, you will have the knowledge. But when it comes to speaking, when it comes to answering this question, you will not have the keywords, means which can be used in your answer, which can make it effective. So that's we are learning here. And if you are just serious UPSC aspirant, so you might want to know what kinds of thing we have to follow, what kinds of thing we have to learn in order to just make our answers effective, or make them like the examiner like more happier, right? Much happier, by the way. So we will just learn everything in this video. Means we have been learning a lot, means we have been learning everything. Okay, if you just watch my all the videos, you will just get to know something new from each and every video. So that's my aim here. Okay, if you are just like UPS, like serious UPSC aspirant, and if you want to know something like how you can just evolve your answer writing, so this is the video for you, and you will just learn something new. And if you enjoy the video, you know what you have to do, just hit the like button. I'm not gonna tell you that you have to do this, you have to do that. Just do everything, just keep your ego aside and just like hit the like button. Okay, just let me know in the comment section what do you feel like all about my video, what do you feel like everything. I'm just talking about not only about this video, but and I just like talk to you in one of my videos, like what do you feel about the videos. And one of my viewers or the audience or the students has told me like he has enjoyed all the videos, he has learned so much things from our videos, and thanks for that. So you can just hit that like button and just comment me if you just do feel so. So okay, I'll start the question now. So the logic of limitless wealth lies in the basic human instinct for furthering self-interest in the form of profit. Now, right now, just focus on my reading, how I'm reading the answer, the question here. The question here, the logic of limitless wealth. What do you think about the limitless wealth? Means मतलब मेरे पास बहुत क्या हो, संपत्ति हो, बहुत पैसा हो, that's called the limitless wealth. Okay, मतलब लामहदूद, मतलब लिमिटलेस, अनलिमिटेड पैसा ही पैसा हो मेरे पास. लाइज इन द बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट. अब बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट यानी जो हम पैदा हुए जब से हमारे अंदर लालच भरी कि मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, मतलब बहुत पैसे कमाओ, ऐसा बन जाओ, दुनिया का अमीर शख्स बनो, ये हमारे अंदर ही है, इंस्टिंक्ट है हमारी. ओके, ये हमारा नेचर है, यू कैन जस्ट से लाइक दैट. फॉर फर्दरिंग सेल्फ इंटरेस्ट, फॉर फर्दरिंग यानी हमारे जो सेल्फ इंटरेस्ट है, जो हमारी जो दिलचस्पी आगे बढ़ाने के लिए, राइट, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट. और हम ये कैसे अचीव करते हैं? प्रॉफिट के जरिए. मतलब अब प्रॉफिट है तो बात हो रही है यहाँ पे बिजनेस की, राइट. सो हम बिजनेस के जरिए किस तरीके से इकोनॉमी नहीं, लोगों को हर्ट करते हैं, वो वाली चीज देखने वाले हम यहाँ पे. इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस सिलसिले में क्या करना है? डू यू थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ परसीविंग एथिकल कैपिटलिज्म? अब क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई संभावना है किसको अपनाने की? इथिकल कैपिटलिज्म. अब इथिकल कैपिटलिज्म क्या होता है आपको पता होना चाहिए. आंसर में है थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन के बारे में, लेकिन इथिकल कैपिटलिज्म क्या है कि लोगों का भी भला और कंपनी जो चला रहा है उसका भला. जैसे स्टारबक्स, आपको पता है कॉफी का जो सप्लाई चेन है यूएस में बहुत बड़ी है, तो स्टारबक्स बहुत महंगी मिलती है. तो वो उसकी क्या सोच है? अगर वो ऐसा सोचता है कि जो कॉफी के जो बीन्स, जो फॉर्मर्स है, उन्हें एक अच्छा सा पे मिले, अमाउंट मिले, पेमेंट मिले, तो वो सेल्फ इंटरेस्ट को बाजू में रख रहा है अपने, और लोगों का भी सोच रहा है, तो वो इथिकल कैपिटलिज्म हो गया, राइट. और आप कोई चीज़ जैसे कंपनी चला रहे हैं, जैसे मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ, अपने वर्कर्स का भी सोच रहा हूँ, उन्हें अच्छे से पेमेंट भी दे रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, तो वो एक तरह से क्या है? कैपिटलिज्म है. और समझे कोई इथिकल कैपिटलिज्म, और समझो कोई कंपनी है जैसे केमिकल की कंपनी, और वो अपने एतराफ़ के लोगों के बारे में सोचते हुए सारे कंपनी का मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो वो इथिकल कैपिटलिज्म होगा. खाली प्रॉफिट के ऊपर ही हम फोकस नहीं कर रहे. दैट्स कॉल्ड द इथिकल कैपिटलिज्म. ओके, सो वी विल स्टार्ट द आंसर. So the basic human instinct are programmed with the individualistic approach of ensuring survival of self. अब इसी को क्या क्या है, जस्टिफाई किया गया है. तो बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट क्या है? आर प्रोग्राम, इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है विद इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, मतलब इनफरादी तौर पर, खुद अकेला करने वाली, ऑफ इंश्योरिंग, क्या सुनिश्चित करना है? सर्वाइवल ऑफ सेल्फ. मतलब अब कहीं फंस जाते तो आप खुद को ही अपने आप को बचाने के लिए सर्वाइव करोगे, वो वाली यहाँ पे बात हो रही है. इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच मतलब खुद से जो कर रहे हैं आप, इंडिविजुअल तौर पर, इनफरादी तौर पर, अकेले तौर पर अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, वो इतना इंट्रोडक्शन यहाँ पे बांध रहा है, आप देख सकते हैं. ओके,
फिर देखिए उसके बाद क्या है, however in the modern age these present okay as a desire for limitless wealth leading to okay, अब ये however क्या है, अब के दौर में ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये जो है जो ऊपर की सर्वाइवल ऑफ सेल्फ इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच फॉर सर्वाइवल ऑफ सेल्फ जो है, ये क्या प्रेजेंट करता है, डिजायर फॉर लिमिटलेस वेल्थ, मतलब ऐसी हमारी इच्छा है कि हमारे पास बहुत सारा धन हो, बहुत सारी वेल्थ हो, पैसा हो। अब ये किसको लीडिंग कर रहा है, किसको लीड कर रहा है वो देख लेते हैं एक बार। देखो, कंप्रोमाइज ऑन वैल्यू ऑफ गांधीयन ट्रस्टीशिप। अब गांधीयन ट्रस्टीशिप को ये कंप्रोमाइज करने की बात कर रहा है, राइट। मतलब क्या है कि ये जो गांधीयन ट्रस्टीशिप है, क्या है इसका, जो फिर ये जो गांधी जी ने बताया कि जो आपके पास पैसा है, जो अमीरों के पास पैसा, वो आप एक ट्रस्टी की तरह पे, एक ट्रस्टी की तरह, वो गार्डियन की तरह है पुअर के लिए, कि वो पुअर का भी भला करे, गरीबों का भी भला करे। आपको गॉड ने एक ट्रस्टी बना के भेजा है, एक गार्डियन की तरह बना के भेजा है, किसके लिए, पुअर के लिए। तो आपको पुअर को भी क्या करना है, पैसा देना है, वो वाला कॉन्सेप्ट है ये। तो ये कंप्रोमाइज कर देता है, जो सेल्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, लिमिटलेस वेल्थ की बात हो रही है, तो ये कंप्रोमाइज कर देगा कि नहीं, अब मुझे ही सब चाहिए, आई वॉन्ट लिमिटलेस वेल्थ, समथिंग लाइक दैट, राइट। अगेंस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेंस, ओके, टेम्परेंस ये ना, टेम्परेंस यानी वही जो सबर करने वाली चीज है, वो अगेंस्ट हो जाता है इसके, कि नहीं मुझे अब अभी चाहिए सब कुछ। लीड्स टू कंप्रोमाइज ऑफ कलेक्टिव इंटरेस्ट, मतलब सबका नहीं सोचेगा, मतलब खुद का ही सोचेगा, घुमा फिरा के वही बात आ रही है, ओके। सो देखिए उसके बाद है अगेंस्ट यूटिलिटेरियनिज्म एंड डज नॉट इंश्योर मैक्सिमम, लाइक मैक्सिमम ही है, ओके, हैप्पीनेस ऑफ ऑल। अब देखिए यहाँ पर भी ना वही बात हो रही है, अगेंस्ट यूटिलिटेरियनिज्म, यानी ऐसा काम कर रहे हैं आप कि दूसरों को उससे प्लेजर मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रही है, ऐसा नहीं कि हम किसी को हार्म कर रहे हैं, तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो वो यूटिलिटेरियनिज्म के अगेंस्ट होगा, राइट। तो ये होगा डज नॉट इंश्योर मैक्सिमम हैप्पीनेस, ओके। तो ये इसके अगेंस्ट हो जा रहा है कि हम लोगों के हैप्पीनेस के बारे में नहीं सोचेंगे, और मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ ऑल को ये इंश्योर नहीं करेगा, सुनिश्चित नहीं कर पाएगा, राइट। सो ये इसका मतलब क्या बोलेंगे, मीनिंग है, राइट। सो प्रमोट्स सेल्फ ओवर ऑल अदर्स। अब क्या है, मैं बड़ा हूं, बस मैं ही चाहूंगा, अपना ईगो सामने ला लेते कि मुझे प्रॉफिट चाहिए। मूवीज वगैरह में बताता है जो विलन होता है कैसे पैसे के लिए कुछ भी कर देता है, तो वो वाला बात हो रही है यहाँ पे। दिस मेक्स इट्स अ वाइज विच नीड्स टू बी रिजॉल्व बाय एमिंग फॉर एथिकल कैपिटलिज्म, राइट। अब देखिए दिस मेक्स इट अ वाइस, मतलब वाइस तो एक उपाध्यक्ष के माने भी होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह, लेकिन दूसरे माने इसके होते हैं इमोरल और वीकेड बिहेवियर, मतलब बहुत बुरा इंसान जो बोलते हैं ना, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है, जो इमोरल है उसको गलत सही की पता नहीं, बस अपने प्रॉफिट के लिए, अपने लिए वो कुछ भी कर सकता है, उसे हम वाइस कहेंगे। विच नीड्स टू बी रिजॉल्व, जो क्या है, रिजॉल्व करने की जरूरत है, वाया एमिंग फॉर एथिकल कैपिटलिज्म, किसके जरिए, एथिकल कैपिटलिज्म के। सो दिस वाज लाइक थिंग्स हियर, सो वी विल जस्ट learn of about this ethical capitalism. What does it mean? Okay, so we'll just like try to learn that now. So okay, let me see. Yeah, you can see that now. Uphold spirit of corporate social responsibility and give back part of profits to society. मतलब क्या है ये, कि आपका जो प्रॉफिट हो रहा है उसका कुछ प्रतिशत क्या होना है, आप सोसाइटी के भलाई के लिए भी करना है, उसे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। सीएसआर बहुत पॉपुलर होता है कॉर्पोरेट सेक्टर में, ओके। इंगेज इन कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी। अब क्या क्या है, इन्वायरमेंट का भी क्या है, कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी, यानी आगे वाली भी चीजें अच्छे से सस्टेन रह के, मतलब बरकरार रहे, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से हम तबाही मचा दे रहे हैं, ओके। किसी नेचुरल रिसोर्स का ऐसा इस्तेमाल करें कि आगे वाले जनरेशन के लिए वो बची नहीं रही है, जैसे कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑयल का इस्तेमाल, मतलब धूम से इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे वाले के लिए बच नहीं रहा, तो सस्टेनेबल नहीं है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है, उससे बरकरार वो नहीं रहेगा, ओके। ट्रेन वर्कर्स अकॉर्डिंग टू एक्सपर्टाइज ऑफ द कंपनी। अब ये वर्कर है, ओके, वर्कर ये ना, ट्रेन वर्कर अकॉर्डिंग टू एक्सपर्टाइज ऑफ द कंपनी, मतलब क्या करेंगे, कंपनी की एक्सपर्टाइज के हिसाब से ट्रेन करेंगे वर्कर्स को। इंश्योर सप्लाई ऑफ ट्रस्टेड वर्कर्स, और ये क्या करेगा, ट्रस्टेड वर्कर्स को सप्लाई करेगा, कि वो क्या करेगा, अपने आप पर लोगों पर भरोसा करने लगे, भाई उसने मुझे कुछ सिखाया है और मैं इस कंपनी में बरकरार रहूंगा। चैनलाइज प्रॉफिट्स टूवर्ड्स इंक्लूसिविटी फॉर बेटर इनोवेशन एंड डाइवर्स ओपिनियंस, राइट, हेल्ड बाय वॉरेन बफेट। चैनलाइज करना है प्रॉफिट्स को, किसकी तरफ, इंक्लूसिविटी को, मतलब सबको, जो हम बोलते हैं ना, आ जाना है, इंक्लूसिव, वो वाली चीज हो रही है। और इनोवेशन के लिए, फॉर बेटर इनोवेशन, इजादात के लिए, कोई चीज आपको बनाना है उसके लिए। एंड डाइवर्स ओपिनियन, जो बहुत सारे ओपिनियंस है उनका भी मुंह बंद कराने के लिए, कौन कह रहा है, वॉरेन बफेट। सो दिस वाज द थिंग्स एंड दिस कैन हेल्प मेक अ केयर फॉर इथिकल कैपिटलिज्म। सो ये सारी चीजें क्या कर सकती है, कैपिटल इथिकल कैपिटलिज्म को मतलब सपोर्ट करने में मदद कर सकती है, कि क्या फॉर्म में, टू इंश्योर गांधीज सर्वोदय वाइल अपहोल्डिंग द कॉर्पोरेट वैल्यू ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ओके। क्या कह रहा है यहाँ पे, ये क्या करेगा, एथिकल कैपिटल टू इंश्योर, क्या सुनिश्चित करने के लिए, गांधीज सर्वोदय,
सर्वोदय प्रोग्रेस ऑफ ऑल, मतलब सबका भला हो, ये वाली बात कहते हैं गांधी यहाँ पर। सर्वोदय while upholding the corporate value of profitability, मतलब कॉर्पोरेट द वैल्यू ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब उनका प्रॉफिट भी हो और ये वाली चीज भी साथ चले, सबका भला भी हो, राइट। ये इंश्योर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस वाज द वीडियो, एंड इफ यू हैव लर्न समथिंग न्यू, so what you have to do, you just have to keep your ego aside and just let me know in the comment section. Okay, means I'm just joking here. Okay, this is not a part of a video, whatever you can do. So I just want you to comment down, like down below, just tell me what you feel about this video and all, and just hit the like button if you really enjoyed the video. And if you want to subscribe, means if you want to be notified for each and every video that we make, so what you have to do, you just have to hit that subscribe button. I don't know what are you going to do with this button, but it must be applied. Okay, just throw something on it. I'm just joking here. So this was the video, and if you are still here, if you are like still watching this video, it means you are a very like serious UPSC aspirant. Just let me know you have watched the complete video, and that would just inspire me a lot. I'm gonna make some new things for you, and thanks for watching this video.